This is a beautiful story about mercy of Srila Prabhupada on a devotee. The transformation what he had experienced by touch of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was supposed to arrive in Paris. So devotees were making arrangements in the temple. So there was a knock on the temple door. When the devotee opened it, there was one 19-year-old boy who was like a hippie who had not taken bath in weeks. He was intoxicated. His eyes are full of red and his hair was matted with dirt. He started shouting in a gruntling voice, "Food." Devotee said, "All right, I'll give you prasadam." Then that boy asked, "Can I come in?" The devotee said, "No, first you must bathe, you are too dirty." So the devotees gave him prasadam and the boy went away. So later in the afternoon, when this devotee went to the park, it was a prestigious Paris boulevard. He went on to the park to do his japa. He heard some noise in the nearby bushes. So when he looked around and saw that this boy had made a little place for himself with all newspapers. So he had been there for a few days. So next day, when again he came, the devotee, when he came for the japa in the park, suddenly that boy popped out of the bushes and he said, "Food." The devotee said, "Please come to the temple, we'll give you some prasad." Even other devotees heard about him. So the devotees named him as Pigpen. It was a nickname given to him, Pigpen. After some time, Prabhupada had arrived. So one morning, all the devotees except the pujaris who were engaging in dressing the deities went for a morning walk in the same park. Suddenly, this boy jumped out of the bushes and he tried to grab Srila Prabhupada's feet. So immediately some devotees alerted, "Get that boy out." So the nearby devotees picked him up and put him back into the bushes. The devotees saw this boy almost touched Srila Prabhupada's feet. Then the devotees finished their morning walk and when they came back to the temple, they saw the temple door was open because they had closed the door when they went for the morning walk. So next thing was when Prabhupada entered the temple room, there was this boy, the Pigpen. He jumped forward, grabbed Prabhupada's feet. Then some devotee said, "Get that boy out." But Prabhupada said no. Prabhupada let that boy hold on to his feet. Prabhupada started massaging that boy's head, saying, "That's all right, my boy, that's all right. Hare Krishna, Hare Krishna. It's all right, it's all right." It was completely silent. Nobody moved and everybody were watching. They were all stunned. And Prabhupada was continuing, "All right, Hare Krishna." Then Pigpen fell back and the darshanarthi started Govindam Adi Purusham. The devotees had darshan of the deities. The temple was crowded. This boy was sitting in the middle of the floor, but nobody dared to disturb him because he had received the mercy of Prabhupada. Then Prabhupada gave the Bhagavatam class. After that, somebody said this boy should leave. Some other devotee said, "No, Prabhupada gave him some mercy. Let us see." So they asked the Pigpen, "Do you want to stay here?" So he little grunted because he has been taking drugs. So then devotees decided him. They took him to the top stairs. They gave him a bath. They cleaned him up. They put him a dhoti and kurta. When they brought him down, the devotees could not recognize. But still, because of too much intoxication, he was not able to speak properly. He stayed around that day and they spent the night there. The devotees thought, "We can't have him around. He can't do anything." But Pigpen picked up. He started cleaning things. So he became very dear to the devotees by cleaning very nicely. So when devotees asked him, "How are you doing?" he would only reply, "Prabhupada saved me, Prabhupada saved me." And then he would start chanting. After a couple of weeks, the devotees were planning on a traveling Sankirtan. So they all were arranging items into the vehicle. So they packed the things and they went inside to get some more books.
They saw Pigpen sitting in the front passenger seat. The devotee asked him, "What are you doing here?" He said, "I go on Sankirtan." The devotee said, "No, Pigpen, you are doing very nice, good job cleaning the temple." But boy insisted, "No, go on Sankirtan." So the devotees thought, so let him give a chance. So he can clean our van and he can help us facilitate. So they put everything together in the vehicle and they left with Pigpen sitting onto the front seat. So the devotee was driving and he was thinking, so God, look at this guy. So he had one book bag. He had kept some books in it. So people used to go, in that time, devotees used to go to parking lots and they used to distribute books there. So our devotees team reached to a parking lot. So first thing what happened was Pigpen came out of the van. Then the devotees were thinking what this guy is going to do. He might get us arrested also. So he said to some devotees, "Get him back." The devotees were also thinking, how do we get him back? Then somebody said, never mind, he'll become scared and be back in a minute. So all of the devotees had breakfast and they packed our bags and they were talking. Then it looked like Pigpen already finished the books and in an hour he came back. His bag was empty. So devotees were asking him, what happened? So someone replied, he probably dumped these books somewhere. Then some other devotee said, no, we saw him distributing the books. So the devotee was asking him, Pigpen, how do you do that? What did you tell the people? Pigpen said, I told people that Prabhupada saved me. That was his mantra. Prabhupada had transformed him, and the transformation in Pigpen's heart because of the touch of Srila Prabhupada was so severe that he had intense faith. So he became a very big book distributor, and he started talking very nicely. His voice, his speech cleared up, and he started giving classes. And eventually he was initiated as Rasada Das, and he served for many years in France as book distributor. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। माता जी कैसा अच्छी। हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय अष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह पाददेश जय जय पद्म मुख पद्म भृंगार नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः तिलटङ्कनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहि नृसिंह हृदय नृसिंह बहि नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने तव करकमलवरे नखम् अधुतशृङ्गम्
दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् एषवधूत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी वॉइस आस्ते माता जी आज्ञा प्रभु जी आସୁଛି हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद माता जी बहुत सुंदर कीर्तन हरे बोल प्रभु जी मंगल तरफ आपको स्वागत प्रार्थना सहित भागवतम कीर्तन प्रारंभ करियो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानित्यं पुंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधकांत नमस्तुते तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अष्टप्रायेषु अष्टप्रायेषु भवतेषु भवतेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
भगवते नमः श्लोके हिंदी राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखद अमृतद्राव संयुतं पीबत भागवतं रसम आलयं मुहुर्वाहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विशेषज्ञ एवं चिंताशील व्यक्तिगण, এই ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏହା ବୈଦିକ ବୃକ୍ଷର ଏହା ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫଳ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅମୃତ ରସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଏହାର ରସ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध। आज एक नूतन अध्याय, द्वात्रिंश अध्याय, सकाम कर्मरे युक्त। श्लोक संख्या 1। कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धीभूयः पितर्तितान्। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री कपिलदेव कहिले, ଯେଉଁ ଗୃହବ୍ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ଭୋଗରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଏ ବା ଭୌତିକ ଲାଭ ଉଠାଏ, ସେ ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଜନିତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରିଚାଲିଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 32ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାମ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ବା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ଦେବହୂତି ମାତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଦେବହୂତି ମାତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏହା କାହିଁକି ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କାରଣ ଦେବହୂତି ମାତା ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଦେବହୂତି ମାତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରି ସେ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ସେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଥିଲା କି ଜୀବର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବ କିପରି ମାତୃଗର୍ଭକୁ କିପରି ଆସେ ଏବଂ ଜୀବର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ କିପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସେ
से माया द्वारा कबलित हो जाए, अविद्या अज्ञान द्वारा कबलित होगी कौन हुए ना पुनर्बार इंद्रिय भोग माति जाए। आउ यह मध्य देखिଥିଲେ कि भगवान कपिलदेव काम पिपासारे किपरि भाबरे व्यक्ति लागी रहे, जहाँकि এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁ କଣ ହୁଏ, ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସେ। ଏବଂ ଜୀବ କୁହାଯାଇଛି କି ଜୀବ କଣ କୁହା କର୍ମ ଫଳକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶରୀର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତାର କର୍ମ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଇ ନ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଶରୀର ଧରିକି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର କର୍ମଫଳ ସେଇ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏବଂ କର୍ମଫଳ ସରିଗଲେ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଏ, ମୃତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହି ଏବଂ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ କାମନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ଏହିପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟୀ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ, ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ଯୋଉ ଜୀବର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖକୁ, ବାସ୍ତବିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମୋ ସ୍ଥିତି କଣ, ମୁଁ କଣ ଏଠାରେ କରୁଛି କଣ, ତ ଏସବୁ ଜାଣି ସେ କଣ ହବ ନା ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ସେ କଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହବ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟୀ ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସେଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାର ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଆସିଥାଏ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ହଉଛି କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆମେ ଯେପରି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ କେବେ କେତେବେଳେ ହଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆମେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ କାଳରେ ଆମର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି କଣ ନା ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗର୍ଭୋଦକ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ସିଏ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ସେଟା ଗର୍ଭୋଦକ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସେଇ ଗର୍ଭୋଦକ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନ କଟାକ୍ଷପାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହା ହଉଛି କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଳୟ, ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ।
तृतीय प्रलय हूँ कौन ना प्राकृतिक प्रलय जेतले ब्रह्मांकर जेतले आयुष शेष हो जाए जो 100 ब्रह्मा जी 100 वर्ष बंचती एवं तांकर आयुष सरीगले कौन हुए ब्रह्मांडर जोटा कि समस्त जीव माने महाविष्णुଙ୍କର जो लोमकूप ब्रह्मा ए जो महाविष्णु जो कथा कहुଛି ଯେପରି ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି महाविष्णु प्रथम आसती करणोदक से विष्णु बा महाविष्णु तांकर जो लोमकूपर अनेक अनेक अनंत ब्रह्मांड गुड़िक सृष्टि हुए तो से अनंत ब्रह्मांड गुड़िक पुणी जा कौन हुंती ना से महाविष्णु बा करणोदक से विष्णुଙ୍କର शरीर जो लोमकूपर बाहर थे से लोमकूपर से मैंने प्रवेश कर जाते तो आमर जो सकाम कर्म देखा गले जो ग्रंथि आम जो भौतिक जगत उपभोग कर जो कामना नहीं कि आम एठा जोटा कि ग्रंथि बोली कहुई जोटा बंधन सकाम कर्म बंधन अटे तो से बंधन द्वारा सकाम कर्म लगी रही आम ये भौतिक जगत बंधन में पड़ रही एवं से बंधन रु मुक्त हो पारना तो से बंधन बा से जो ग्रंथि एते कठिन अटे जो आमर सकाम कर्म एते कठिन आम जो बंधन अटे ये भौतिक जगत प्रति आमर जो आम जो बांधी केवल भगवान चाहिए आम से निवृत्त हो पारना आम बंधन मुक्त कहीं पारना यार कारण हूँ कौन आम स्वयं निजे भगवान चाहिए भगवान तो चाहती कि समस्त जो भगवान आमर परम पिता अटंती समस्त पिता चाहती कि तांकर संतान माने निज पाखक फेरी आसते किंतु जितेबले पर्यंत आमे न चाहिंचंती धैर्य आमे कोठी अछंती बहुत खूब आराम आयस रे जीवन बिताउछंती कष्ट भी भोग करछंती धैर्य कि बाहर जॉब करसी सी कौन घर को आसवाक चाहूनी तो पिता कौन चाहते कि सी घर को फेरी आस किंतु ये तार से संतान कौन कर सी तार सी बाहर जॉब करछि जहाँ भी धन आसुची ताहाको अयसरे आराम अयसरे सी अतिवाहित कर तो ये जो तीनोटी प्रलय कथा कहुई तीनोटी प्रलय कथा आम जानिले कि नित्य प्रलय नैमितिक प्रलय आउ हूँ तृतीय प्रलय हूँ कौन तृतीय प्रलय हूँ प्राकृतिक प्रलय तो ये नैमितिक प्रलय आम गर्भोदक साई विष्णु शरीर में प्रवेश कर जाउछन आउ प्राकृतिक प्रलय आम समस्ते कौन होती ना महाविष्णुकर लोमकूप प्रवेश कर जाउछन तो देखा गले आम भगवान का संपर्क में आसुचंती पुनर्बार ये भौतिक जगत पलि आसुचंती आम भगवान का संपर्क में आसी जेपरिक आम भगवान गर्भोदक साई शरीर मध्य प्रवेश करगले महाविष्णु शरीर में प्रवेश करगले यह सत्वे मध्य आमर जो ग्रंथि बा आमर जो बंधन से आम मुक्त हो पारना तो ये जो सकाम कर्म बंधन बा जो ग्रंथि अटे ता बहुत कठिन अटे तो ता सहित आमर जो अहं मम इति जो आम देखी पूर्व अध्याय मान कि अहं मम इति जो कहुई अहं ये जो अहंकार मु आ मोर भाव ये भाव मुक्त हो पारती ना आम तो से आम जो भौतिक जगत रे आम जो अहं भाव ये अहंकार जेहेतु आम मुक्त हो पारती ना से आम ये भौतिक बंधन रु आम मुक्त हो पारती ना तो ये जो अध्याय नाम हूँ कौन ना सकाम कर्म युक्त बा कर्म बंधन विषय भगवान कपिल देव देवहूति माता को यही अध्याय उपदेश देउछंती इटा हूँ भगवान कपिल देव शेष अध्याय माने उपदेश देवार शेष अध्याय अटे तो यही उपदेश को श्रवण करी देवहूति माता कौन कर समस्त प्रकार भौतिक आसक्ति मुक्त होगी से भगवान भक्तिमय सेवार लगी जाउछंती जहाँकि आम परवर्ती अध्याय देखिए
तो ये जो सकाम कर्म रे युक्त यार अर्थ हूँ कौन व्यक्ति निजर इंद्रिय तृप्ति पाई जो कार्य करे ताकू कौन कह सकाम कर्म कह तो यहीटा ही आमर कर्म बंधन अटे जहाँकि ये जो कर्म बंधन जो ग्रंथि अटे सकाम कर्मर जो ग्रंथि अटे ता बहुत बलवान अटे बहुत कठिन अटे यहाँ एथिरु मुक्त हेबा तो ये जो सकाम कर्म जोगु कौन हुए व्यक्ति ये भौतिक जगत रे बांधी हुई रही जाए एवं बारंबार से ये भौतिक जगत आसी थाए जाई थाए तो एठारे भगवान कपिलदेव कौन कहते कपिल उवाच भगवान कपिलदेव कौन कहते अथ यह गृह में धियान जो माने जो माने गृह मेधी अटंती एव एव अवसान हुए जो माने गृह रे बास करछंती जो व्यक्ति गृह मेधी अटे एवं से कौन करता है ना गृह रे बास करता है एवं कहते धर्मान एव अवसान माने तार कर्तव्य कर्म को करी कर्तव्य कर्म कौन ना जिते गृह मेधी कथा कहुई कि गृह मध्य से बास करुँच तार कर्तव्य कर्म कौन होता है तार गृह परिवार दायित्व नेवा तो सी तार गृह परिवार प्रति आसक्त होगी से कौन होता है ना गृह रे अवस्थान करता है बास करता है एवं कहते गृहे कामम अर्थं च धर्मान तो गृहे कहते ये जो गृह मेधी व्यक्ति से कौन होता है ना से गृह रे बास करता है एवं तार परिवार पारिवारिक कर्तव्य को से संपादन करता है कामम से इंद्रिय विषय भोग से कौन होता है ना लगी रही है इंद्रिय तृप्ति लगी रही है एवं अर्थम एवं आर्थिक अभिवृद्धि रे लगी रही है तार किपरि भाव कि मु किपरि भाव अधिक धन संचय करि परिबि एवं मोर इंद्रिय मान को आनंद दे परिबि मोर परिवार को खुशी दे परिबि तो सेठी पाई से कौन होता है च धर्मान से विभिन्न प्रकार धर्मानुष्ठान करिथाए किंतु से जो धर्मानुष्ठान करिथाए तार से क्यों कारण पाई करता है इंद्रिय तृप्ति पाई करता है भौतिक उपभोग पाई करता है तार परिवार जो सदस्य मान को आनंद देवा पाई विभिन्न प्रकार धर्मानुष्ठान करिथाए आउ कुछ स्वान दुग्धि कि ये जो भौतिक उपभोग रे से कौन होता है यहीपरि भाव से लगी रही है तो से से कौन हुए भूय विपर्ति तान कि से बारंबार यहीपरि जो भौतिक उपभोग कामना नहीं कौन होता है ना जन्म मृत्यु चक्र से घूर्ण्यमान हो तो जिते पर्यंत आमर सकाम कर्म रही जिते पर्यंत आमर भौतिक इंद्रिय तृप्ति लालसा कामना रही तो सेते पर्यंत आमको ये भौतिक जगत को आसवा पड़े आम कहीं ना केते पुण्य कर जाऊँ पछे कहीं केते पुण्य कर पछे आम पुनर्बार ये भौतिक जगत को आसवा पड़े आम पुण्य करगले कौन हम होता पारे आम उच्चतम लोक को प्राप्त कर एपरिक इंद्र पद को भी प्राप्त कर किंतु से पुण्य क्षण जो जो सुख पुण्य द्वारा जो सुख प्राप्त हुए ता कौन होता है ता शाश्वत ही न था आम से भौतिक उपभोग माथिल रहा पुनर्बार आमर जो पुण्य फल कौन हम धीरे धीरे शेष ही जदि आम ये भौतिक जगत अच्छा कि मनुष्य शरीर धारण करी भी आम ये भौतिक जगत रे सुख अनुभव कर अर्थ आम पूर्व जन्म कौन कर ना कि पुण्य अर्जन कर पुण्य को आम कौन
सेटा को यूटिलाइज करछन्ती जदि किछि सुख भोग करछन्ती यार अर्थ हमर जो पुण्य कर्म शेष होबाकू जाउछि सरी सरी आसुछि तो एठारे देखिया गले कि जीव एहीपरि भाव परे से कोन हुए ना गृहमेधी जीव से एहीपरि भाव अवस्थान करिथा तो प्रहलाद महाराज तांकर पितांकु कि हिरण्यकशिपु कहउछन्ति हित्वं पातम गृहम अंधपूपम तो ये जो पारिवारिक जीवन ये जो गृहमेधी ये गृहमेधी बा जो गृह को अंधकूपम कूपम बोली कहउछन्ति प्रहलाद महाराज क्यों गृह को अंधकूपम बोली कहउछन्ति ना जेउ गृह रे आत्मानुभूति लाभ करिवा पई बा आत्मानुभूति लाभ निमित्त सेठारे कौनसी कथबार्ता हुअन्ति नहीं जो गृह रे केवल ग्राम्य कथा चली था विभिन्न प्रकार भौतिक उपभोग कथा चली था किंतु सेठारे आत्मानुभूति लाभ करिवा कौनसी वार्ता बा कथबार्ता करते नहीं से गृह को कौन कहुई ना प्रहलाद महाराज कहते अंधकूप समान अटे तो सही अंधकूप कौन थाए किसी भी न था पानी मध्य सेठारे न था तो से कौन कहते भगवान सॉरी प्रहलाद महाराज तांकर पिता को कौन कहते ना वनम गतो यत हरिम आश्रय वनम गतो हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज कहते कि ए प्रकार जो अंधकूपा कूप रही जो अंधकूप ये जो गृह अटे यह अंधकूप समान अटे एवं यही गृह को तुम्हें त्याग कर तो जोठारे कि पानी मध्य मिलवा असंभव एवं कौन कर ना वनम गतो से तुम्हें हे पिता आपण वन को जाओ एवं हरिम आश्रय परमपुरुष भगवान हरिंकर आश्रय नियो तो से प्रभुपाद मध्य कहते कि आमको कौन करिया दरकार ना पूर्व काल रे तो थिला कि जंगल को जाइकिना कौन करिया ना आमे भगवान कर भजन कीर्तन रे लागी रहे भगवान कर हरि को चिंता करि परिबा मनन करि परिबा भगवान का नाम जप करि परिबा किंतु वर्तमान समय रे से सब व्यवस्था ही नहीं तेणुक प्रभुपाद कौन कहते गृह को त्याग करके वृंदावन जाओ वृंदावन कहीं जीवाई कहते कारण वृंदावन को जीव सी कौन हम कृष्ण कृष्ण चैतन्य रे सर्वदा भगवान भक्तिमय सेवा लगी रहे कृष्ण चैतन्य सर्वदा तार जीवन को अतिवाहित कर तो जेपरी हिरण्यकशिपु जो जेतेबेले प्रहलाद महाराज को शिक्षा देवाई से षंड अमृक नामक जो तंकर शिक्षक को अंडर जो गुरु को तंकर व्यवस्था जो पूर्ण जो दायित्व नापाई कही कि से जेपरी असुर कूलर ज्ञान को आहरण करिवे तो षंड अमृक जाकि से कौन कर पढ़ाऊँ पढ़ी सारा किसी दिन पर जो प्रहलाद महाराज घर को आसुंच पितांकर जो गोदी रे बस हिरण्यकशिपु पचार कि तुम्हें कौन माने वास्तविक भाव तुम्हें कौन शिक्षा कर असुर कूल विषय तो से यही कथा कहते कौन ना जो सप्तम स्कंद रे आसुची ये कथा कि जो नवधा भक्ति विषय कहते कि श्रवणम विष्णु स्मरणम सॉरी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम
तो ये जो नवधा भक्ति, ये नवधा भक्ति को आचरण करी से भगवान को ठारे समर्पित हो पार, भगवान को ठारे भगवान का आश्रय आसी पार। तो कहते इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा प्रियते भगवती अध्वा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। यह हूँ कौन तो प्रहलाद महाराज कहते जो नवधा भक्ति यह समस्त को आचरण करने उचित, आउ द्वारा समस्ते तांकर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करि परिबे। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो जाउछन्ति एवं जो षंड अम्रक तांको कहउछन्ति कि तुम की प्रकार शिक्षा देइछ। तो षंड अम्रक सी कहउछन्ति कि आमे एभली तो शिक्षा देइनु। तो प्रहलाद महाराज कौन कहउछन्ति कि कहउछन्ति मति ही न कृष्णे परतः स्वत बा मीठ अभिपद्यते गृहव्रत नाम आदंत गोभी विशताम तमिश्रिम पुनः पुनः चर्बित चर्बणना। तो जो जड़े भौतिकवादी व्यक्ति जे कि सर्वदा गृह मेधी जीवन यापन रे लगी रही था, अतिवाहित करुता है, तार मति न कृष्ण कहते तार मति केवल कृष्ण ठारे लगी पार नहीं बा परतः बा कहार केही ताकू निर्देश देले मध्य सी भगवान कृष्ण ठारे सी समर्पित हो पार नहीं, निजे चाहिए मध्य ना तो परतः माने किए अन्य कहीं जदि ताकू निर्देश दियंती कि भक्ति पथ रे आसे भगवान कृष्ण कर भक्ति रे आसे भगवान कृष्ण कर शरण रे आसे तथापि सी कौन हम ना से सी आसबनी भगवान शरण रे आसबनी। क्यों मैंने आसबनी ना गृहव्रत नाम जो मैंने गृहव्रती अटंती गृह मेधी अटंती से माने कौन ये भौतिक शारीरिक जो धारणा से माने अत्याधिक आसक्त अटंती परिवार आत्मीय स्वजन मानक ठारे सेमानकर मन लगी रही जो शेष शेष स्थिति कौन हुए ना तमिश्रम नरकमय स्थिति है। अब पुनः पुनः चर्वित चर्वणार से माने जहाँ को पूर्वर चोबाई सारी से जिन को से कौन कर बारंबार चोबाई लगी। तो एठार जो गृह मेधी कथा कहुई जो देखा गले जो आश्रम रही कौन गृहस्थ आश्रम बोली कहुई जो मैंने गृह मेधी अटंती से जो गृह मध्य अवस्थान कर गृहस्थ आश्रम सहीटा को कह जो चारि प्रकार आश्रम रही कौन कौन चारि प्रकार जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम सन्यास आश्रम। तो मानक मध्य सबुठारु बड़ आश्रम हूँ कौन ना गृहस्थ आश्रम। सबुठारु अधिक लोक ये गृहस्थ आश्रम रे अवस्थान करते को सबुठारु महान आश्रम बोली कहुई। अन्य तीन प्रकार जो आश्रम रही से समस्त देखा गले समस्त लक्ष्य समस्त गोल हूँ कौन गोटे कौन ना वनम गतो यत हरिम आश्रयत। जो प्रहलाद महाराज कौन कहते ना वनम गतो यत हरिम आश्रयत कि समस्त लक्ष्य हूँ कौन गोटे कि अनासक्त ही कि वनम जीवार अर्थ कौन अनासक्त भाव रे जीवन को अतिवाहित कर भगवान को आश्रय रे भजन करवा उचित। जोगी मैंने कहीं वन को जाती से माने ये जाती कि जहाद्वारा कि से पूर्ण विश्वास को भगवान को ठारे लगे पार कि जदि भी
मते कहीं सुरक्षा दे पारिबे से होचंती कि परम पुरुष भगवान हरि कृष्ण। तो मु से परम पुरुष भगवान का शरणागत होचे। तो जोगी यह ही चाहिए। तो जेते बड़े व्यक्ति कौन हुए ना ये जो गृह परिवार ठारू जो आसक्ति जात हो जाए से सी कौन हुए आसक्त हुई जो से भगवान भक्ति मई सेवारे हरिंकर आश्रय रे जाए से सी यही भौतिक जगत उद्धार पाई पारे। किंतु जो माने भगवान कपिलदेव एठारे जो कहउचंती कि जो माने केवल निजर गृह परिवार रे आसक्त से माने बारंबार विभिन्न जोनि रे से माने कोन करथांती ना भ्रमण करथांती दुख यंत्रणा को भोग करथांती एवं बारंबार शरीर परिवर्तन कर चलथांती विभिन्न लोक परिवर्तन कर चलथांती पुनः पुनः चर्बित चर्बणाल चोबाई सारी खाद्य को बारंबार चर्बण करने को भल पाती जिते कि सेमानकर कष्ट जंत्रणा जिते से आसे सेतेबेले से माने चाहती नहीं कि हाँ ये भौतिक जगत पुनर्बार आसे बोली जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक जो दुख अटे ताहाकु से माने कौन भोग तो करने को ही पड़ो जेहेतु से भौतिक जगत को आसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख रु से बंची पारे ना। तथापि जेहेतु से जो से गृह तांकर परिवार से आत्मीय स्वजन प्रति अत्यंत आसक्त होता से बारंबार आसवा पड़ी थाए। पुनर्बार से कौन चाहता कि मु पुनर्बार ता मृत्यु जो समय हुए से कौन चिंता करता कि हाँ मोर परिवार मु एतिक सुख दे पारे ना मु एमती कर पारे ना एमती मो पुत्र किछि बड़ जिनस कर पारे ना ये सब जिनस चिंता रही था। तो से पुनर्बार गोटे जोनि प्राप्त हुए। तो देखा गले एटा प्रभुपाद जो गृहस्थ आश्रम कहते कि गृहस्थ होती कौन ए प्रकार एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम रे जो व्यक्ति रही है से व्यक्ति जे स्त्री पुत्र परिवार और बंधु बांधव मेल रे बास करी सुधा से प्रति अनासक्त भाव रही था आसक्त हुई न था। से एक परिव्राजक सन्यासी अटे ना सॉरी से एक परिव्राजक सन्यासी हेबा अपेक्षा पारिवारिक जीवन यापन करने को पसंद करती किंतु तांकर मूल लक्ष्य मुख्य लक्ष्य हूँ कौन आत्मानुभूति लाभ करवा बा कृष्ण चेतना स्तर को आसवा। तो यहीटा हूँ समस्त लक्ष्य जो चारोटी आश्रमर लक्ष्य हूँ कौन ना वास्तविक भाव में आमको परम पुरुष भगवान शरण रे आसवा आत्मानुभूति लाभ को प्राप्त कर। आत्मानुभूति मीन्स कौन आत्मा रे अवस्थित रहिबा एवं भगवान भक्तिमय सेवा लगी रही। तो एठारे भगवान कपिलदेव गृहमेधी मान कथा कहते गृहमेधी माने भौतिक स्थिति रे रही समृद्धशाली जीवन यापन रे लक्ष्य रखि थांती से तथाकथित पुण्य कर्म योग यज्ञ दान धर्मादि अनुष्ठान करी ए प्रकार समृद्ध जीवन लाभ करती से भौतिक क्षेत्र में उच्च पदवी लाभ करते एवं जेहेतु से जानी था पुण्य कर्म फल भोग करचंती तेणु से बारंबार इंद्रिय प्रीति मूलक कर्मानुष्ठान करी चली थांती। तो जो माने विभिन्न प्रकार यज्ञ दान धर्म आदि कौन करती ना पुण्य कर्म को संचित करते एवं से पुण्य कर्म बल से विभिन्न प्रकार इंद्रिय प्रीतिमूलक से कौन करते ना से जो पुण्य फल को इंद्रिय तृप्ति लगे था जेहेतु से पुण्य कर्म करते अधिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता। तो से श्री प्रहलाद महाराज कहते पुनः पुनः चर्बित चर्बणा नाम अर्थात जो मैंने से कौन करती ना पुनः पुनः विष विष्टा को चर्बित चर्बण करने भल पाती बारंबार से कौन करते जहाँ को चोबई सारी जहाँ को पूर्व जन्म बारंबार से भौतिक जगत जन्म होती एवं बारंबार से भली भौतिक कार्य लिप्त रही पुनर्बार यही जन्म से भाव से कौन कर पुनः चर्बित चर्बण से खाद्य को से
चौबई सारी वस्तु को से पुनर्बार चर्पण कर भौतिक उपभोग लगी रही जितेबले कि से आ द्वारा दुख कष्ट जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख को भोग कर किंतु से माने ए प्रकार जीवन यापन प्रणाली को भोग करने को चाहती ना जो मृत्यु जो जन्म समय पूर्व ध्यान आम देखिले कि जीव जानुची जितेबले कि हाँ मु पूर्व 1000 जन्म धरी मु एही भली भावरे मु कौन करची ना मातृगर्भरे एही भली कष्ट जंत्रणा को भोग करची एवं भगवान प्रार्थना करची तो सेतबेले से कौन कहूची ना मु कौन करिवि ना मु आपनकर ठारे आश्रित हेबि मु आपनकर हरिनाम कीर्तन करिवि तो आपनकर भक्तिमय जीवन यापन करिवि एवं पुनर्बार ई भौतिक जगत रे मातृगर्भरे आ जन्म नेबि नाही किंतु पुणी थरे से चर्बित चर्पणाराम पुणी थरे से पूर्व भली से जो परि भाव से पूर्व जन्म रे भौतिक उपभोग लगी रही से भली पुनर्बार एठारे कौन करछि से भली भौतिक उपभोग लगी रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी एठी विराम देवा। हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट हो जाइछन्ती। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम समस्त प्रणाम।